Hello everyone. So welcome back to Decode Coding. So today the thing that we'll be understanding is related to the functions. We have to understand what function is. So I will not go to the definition of the function. Yeah, what are the steps related to the function? I will directly explain each and everything related to the function through the coding. Getting this point? So first thing first, why we need a function we need only if we have to do something repeatedly. If we have to do something repeatedly, to do that thing repeatedly, you are using the functions, right? So यहाँ पे आप क्या काम कर रहे हो, अपना कोड रिडंडेंसी मीन्स कि बार बार लिखना, जो कोड है जहाँ पे रिडंडेंट कोड आपको बार बार लिखना है उसको हम अवॉइड कर रहे हैं. दैट्स व्हाट वी मीन बाय फंक्शन. अब आप फंक्शन को लिखते कैसे हो? सपोज टेक एन एग्जांपल. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मेरे पास एक काम आया है. लेट मी ओपन द VS कोड. Okay guys, let's understand the function. Suppose if I have something I had to print hi world, hi hello world, this thing, and after that I have to print something like this, and I have to print something like this. Print hi, how are you? Hi, how you? These are the things that I have to print repeatedly. And once more, let's say print it's me, right? These are the three things that I have to print 5 times. So what I do is, either one thing is just repeat this thing 5 times. So let me give here one more thing. Let's say I'm keeping here one line as well. I'm giving the dash as that one line, separate line. These things, hi hello world, hi how are you, it's me. I'm saying you have to print it 5 times. These lines you have to print it 5 times. So what you will do is, you will copy it again, Control C, and you will paste it here, Control V. Again you will paste it here, Control V. Again paste it here, Control V. Again paste it here, Control V. So you will run it 5 times. Once you are running it 5 times, then you can run this code, right? So I'm getting hi hello, how are you, like this 5 times. So this is the repeated code. This hi hello how are you, I am repeating how many times? 5 times here. Is this a beautiful code looking like? No, it's a wrong thing, right? We should not repeat our code many times. You will say, sir, okay, there is an option. What is the option? Sir, use the for loop and print it 5 times. So what I will do here is, I will use a for loop. I will say for and I in range 5, for I in range 5, and I will keep it inside this, and I will print it, That means same thing I am doing here. I am repeating it 5 times, I am printing it 5 times, right? But here, for using a for loop, we are having one more beautiful concept. That there is a function. Instead of using a for loop, you can use something called as a function, and you have to call that function again and again to execute this 4 lines of a code. Same thing we'll be doing. Instead of using a for loop, we will be using something else now. One more thing. Suppose if you don't want these lines to be executed, अगर आप इन लाइन्स को एग्जीक्यूट ही नहीं करना चाहते हो, अभी आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, बट अपना लेटर ऑन यूज करना चाहते हो उसको, राइट? सो सपोज यहाँ पे आप ऐसे करना चाहते हो, आप ये करना चाहते हो, यहाँ पे यू हैव टू डू समथिंग लाइक दिस. अब बोल रहे हो, आई विल से समथिंग लाइक दिस. प्रिंट my code is executing, right? And you are saying here print after the follow, printing 4 lines, ending the code, right? I'm saying you, after you line this first line, print my code is executing, then you are printing it 5 times. Then again I'm saying you that print ending the code, and after that I'm again telling you have to repeat it 5 times again. Here, right? That means I will copy the same code and write it again with the 4 and 5 lines, right? This code, understand it here. I'm saying that you print the my code is executing first time, then print this hi hello world, hi how are you, it's me, have to print 5 times, it will be repeated 5 times. Then I'm saying that program ending the code, I got ended the code. Then again I am saying you that you have to print it 5 times again. Then again you are taking the for loop here, again writing the same code here, again you are running it again, right? So again we are repeating the same code here as well,
right? So this is not again the one beautiful code. It's not looking beautiful because we are repeating the same steps again and again. Is there any other way where I will just write this code once, but I will not repeatedly write this code again and again and again and again? For that we are having something called as a function. So as of now, just remember it. Whenever you are having a redundant code, to remove that redundant code, just write it once, and whenever you need it, जहां पे भी आपको उसको लेना होगा कॉल करने के लिए, आप वहां पे उसको कॉल करोगे. जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं यहाँ पे लिख दूंगा उसको 5 टाइम राइट करो. यहाँ पे चाहिए, अगेन मैं उसको बोलूंगा 5 टाइम ना राइट कर लो, राइट. सो यहाँ पे आई विल नॉट रिपीट द सेम कोड अगेन एंड अगेन. सो हाउ विल डू इट? वी विल बी यूजिंग द फंक्शन फॉर इट. अब फंक्शन कैसे होता है, लेट्स सी इट. सो सम थिंग्स रिलेटेड टू द फंक्शन. जैसे फर्स्ट you have to use the def. Like if I am telling you, you have to use the for loop, while you are using for here, right? Same thing, if you have to write the function, you have to give here def in front of the function, right? Then I have to give here function name. The function name can be any identifier. You know what are the valid identifiers. Function name I have to give here, and after the function name I have to use their simple braces, and here then you have to use these semicolons. And यहाँ पे inside this function you can write any statement here or any code here as per your requirement, right? अब यहाँ पे आपने फंक्शन लिख लिया, बट ये फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक ना उसको कॉल कर लो. ऐसे समझ लो, आपका फोन नंबर मेरे फोन में पड़ा हुआ है, आपका फोन नंबर. बट इफ आई हैव टू कॉल यू, what I have to do? I have to dial your number. Same thing. Here you have wrote the function, but if you want this function to get executed, अगर आप इस फंक्शन को रन करना चाहते हो, आपको ना इस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है. कहाँ पे कॉल करूंगा मैं? यहाँ पे कॉल करूंगा. कॉल कैसे करते हैं हम? फंक्शन का नाम दे देते हैं. फंक्शन का नाम दे दिया, राइट, एंड देन कर्ली ब्रेसेस दे दिया. इससे ना आप इस फंक्शन को रन कर सकते हो. गेटिंग दिस पॉइंट? इस फंक्शन से आप इस फंक्शन को रन करते हो. सेम थिंग, लेट्स सी इट. पहला इतना ही देख लेते हैं. सेम कोड आई विल टेक हियर, राइट. सो इफ आई विल रन दिस प्रोग्राम, यू विल गेट इट लाइक दिस. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, राइट. जितने भी 5-6 बार रन हो रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है? ओके, सो फ्रॉम यहाँ पे इट इज सेइंग दैट एंडिंग द कोड. After ending the code, this line, after ending the code, again we are repeating this 5 times. Here. Got it? So that means this code doesn't look good, as I told you. Now what is the way here? So what I will do is I will comment this line. I will comment as of now. I'll comment all the lines here. No, first thing first, what I am saying here, this line, print my this thing, something, whatever is the thing I have wrote over there. So same thing I will repeat here. This is the first thing. My program is getting executed, my code is getting executed. After that, I told you here we are using for loop for in range, and 5 times I am printing here. Then here I am saying ending the code. Again I have to print here 5 times. Again I am using the same code here, right? So I told you, if you have to do some repeated task, you don't have to write the exact code again and again. So you have to write it once. So what we are using with their function. So what I will say here, def, creating a def. Now give the function name here. Let's say I am saying fun. My function name is fun, and then I have to give the double braces. Then I have to give here column, right? This is the thing that you have to write. After that हमें क्या करना है यहाँ पे? This thing I have to write 5 times. ये वाली चीज़ मुझे कितनी बार लिखनी है? 5. I'll copy here 5 times, and I'll print here again, right? So let me remove the these here, right? So जो ये मेरा कोड था, ये मैंने exactly यहाँ पे लिख दिया same code. Getting this point? Now अब मुझे क्या करना है? इसको ना 5 बार कॉल करना है. 5 बार कॉल करने के लिए क्या करूँगा मैं यहाँ पे लूँगा fun. 1 बार हुआ, right? दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, चौथी बार हुआ, 5वीं बार हुआ, right? So 5 times I have called this function. I have not wrote anything like this, right? उसके बाद क्या लिखना है? ये वाली चीज लिखनी है, print, right? Same thing here. I will write it again here, this thing. After that, again I am writing the same code. यहाँ पे for loop में same code में for loop में बार बार फिर से लिख रहा हूँ और इसको 5 बार कॉल कर रहा हूँ. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? Instead of writing all the code again, so I will simply say here fun 1 times, fun 2 times, fun 3 times, fun 4 times,
and then fun fifth time, right? So if you can check here, we are not writing the whole code. जो यहाँ पे सारा कोड है वो हम बार बार नहीं लिख रहे, इंस्टेड हम क्या कर रहे हैं, जस्ट कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फिर से इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फिर से इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं फिर से, राइट? अगर मुझे 1000 बार इसको रन करना होगा, कहीं पे भी रन करना होगा, जस्ट आई विल नॉट राइट द होल कोड, जस्ट आई विल कॉल इट, राइट? So after that, that's it, and that means whenever you are having the repeated task, to repeat that task again and again, writing that code again and again, instead of writing that code again and again, we are just writing it once. And whenever we need to get that code executed, we have to call this function. That's it. Got it here? So I hope you understood about the functions, why we need the function. Getting this point? ये यहाँ तक तो आपको समझ आया. If I will run this program, so you are again getting the same result as you are getting with the for loop, right? So instead of using the for loop now, so what you can do, you can use the functions here, right? Functions का एक benefit ये है, आप इसको एक बार लिख लिए, आपको कहीं पे भी कॉल करना है, कहीं पे भी थोड़ा सा भी इसको चाहिए एक बार आपको, तो उसको आप बार बार कॉल कर सकते हो, right? This is the one thing here. एक चीज़ तो ये आपको समझ आ गई. दूसरी चीज़ समझ लो, दूसरी चीज़ हम समझ लेंगे. लेट मी रिमूव दिस कोड हियर, ऑल द कोड हियर फ्रॉम हियर. सपोज कर लो मेरे पास a है, a इज मेरे पास a इज इक्वल टू 20, या लेट्स से आई विल टेक द लेंथ ऑफ ब्रेड, आई विल से l इज इक्वल टू 6, breadth is equal to 8, right? Then I have to find the area of a rectangle. I will say print area of rectangle will be length into breadth, so I will say L into B, right? L into B, length into breadth, and it will give me the output 48, right? Suppose after that I have to again write this L is equal to 44, then I am saying breadth is equal to 99. Again I have to say print length into breadth L into B, right? Again if I run this program, now it is giving me 436, right? So अगर मेरे पास और कुछ है, अगेन है कुछ 5 और 6, तो फिर मुझे फिर से ये रिपीट कोड करना पड़ेगा अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. गेटिंग दिस पॉइंट? सो इस चीज़ से कैसे हम रीड ऑफ करेंगे ताकि हमें ये लाइन्स बार बार ना लिखना पड़े, हमें जस्ट एक लाइन एक बार लिखना पड़े, लेंथ इनटू ब्रेडथ, दैट्स इट. गेटिंग दिस पॉइंट? सो इसके लिए ना आपके पास एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन. अगेन आई विल यूज हियर फंक्शन डेफ फन, एंड यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स दे रहा हूँ. यहाँ पे वी नो व्हाट वी हैव टू डू, प्रिंट लेंथ इनटू ब्रेडथ, राइट? लेंथ इनटू ब्रेडथ. अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, लेंथ और क्या चाहिए, ब्रेडथ. तो हमारे पास ना एक चीज़ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग इट पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स. पैरामीटर्स आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ एल है मेरा लेंथ एंड बी है मेरा ब्रेडथ. ये मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स जो हैं डिफाइन कर लिए, राइट? सो जब भी आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, जैसे मैं पिछले लास्ट टाइम मैं लिख रहा था एल इज इक्वल टू 7, देन एल इज इक्वल टू 9, देन आई एम सेइंग प्रिंट इनटू ब्रेडथ, then I was saying L is equal to 30, breadth is equal to 45, then I am again writing print L into breadth. अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, whenever I will call this function, so at that time अगर मैं ऐसे ही इसको रन करूँगा तो it will throw an error. ये क्या बोल रहा है, एरर बोल रहा है. एरर क्या बोल रहा है, फंक्शन मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स लेंथ एंड ब्रेडथ. अब यहाँ पे ना ये बोल रहा है कि 2 आर्ग्यूमेंट्स आपको देने चाहिए. जब भी आप मुझे कॉल कर रहे हो उस टाइम ना आपको 2 आर्ग्यूमेंट्स देने चाहिए मुझे, L और B. आप नहीं दे रहे हो. ये फंक्शन बोल रहा है, ये फंक्शन ना एक चीज़ बोल रहा है कि भाई जब भी तुझे मुझे कॉल करना है ना, सपोज आई एम कॉलिंग यू, आप मुझे बोल रहे हो सर जब भी आप मुझे कॉल करोगे, कॉल करना जैसे ही मैं कॉल रिसीव करूंगा आप ना मुझे हेलो बोल दोगे, ये आप मेरे साथ एग्रीमेंट कर रहे हो. गेटिंग दिस पॉइंट? सेम एग्रीमेंट दिस इज डूइंग, दिस फंक्शन इज सेम. ये बोल रहा है जनाब जब भी आप मुझे कॉल करोगे मेरे साथ एक एग्रीमेंट है आपका. क्या एग्रीमेंट है? आपको ना मुझे लेंथ देना है, आपको मुझे ब्रेडथ देना है. ये 2 चीज़ें आपको देनी ही पड़ेगी जब भी आप मुझे कॉल करोगे. तो उस टाइम मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ही पास कर लूँगा. मैं लिखूँगा यहाँ पे 4,6. मैं बोल रहा हूँ उसको मेरा जो लेंथ है वो 4 है, मेरा जो ब्रेडथ है वो 6 है, और वो उसको मैं दे रहा हूँ जब भी मैं उसको कॉल कर रहा हूँ. अब आपको ये नहीं करना पड़ रहा है. A इज इक्वल टू 7, B इज इक्वल टू 9, देन प्रिंट लेंथ इनटू ब्रेडथ. दिस थिंग यू डोंट वांट टू डू नाउ, राइट? अब एग्रीमेंट क्या हो गया, अब एग्रीमेंट ये हो गया भाई, तो जब भी तुम मुझे कॉल करोगे एक तो मुझे लेंथ पास कर लो, एक तो मुझे ब्रेडथ पास कर लो, राइट? अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा, इफ आई विल कमेंट दिस थिंग हियर एंड अगेन आई विल रन इट, नाउ यू आर गेटिंग द आउटपुट एज 74.
राइट। सो एग्रीमेंट क्या था भाई, जब भी तुम मुझे कॉल करोगे एक तो लेंगे दे दो, एक तो ब्रेड दे दो, मैं आपको ना एरिया ऑफ ए ट्रायंगल रेक्टेंगल निकाल के दे दूंगा, राइट। सो अगेन इफ आई हैव टू रिपीट सेम थिंग, अगेन आई विल से सेम थिंग, ओनली दिस थिंग। अब मेरे पास कोई और नंबर है 12,33, बस इतना ही मुझे बोलना है, यहाँ पे मेरा रिजल्ट आया। कोई और नंबर है, लेट्स से कोई और स्टूडेंट आ रहा है, सर वो बोल रहा है इसका भाई एरिया निकाल दो, मेरे पास दो वैल्यूज है, एक है 4, लेंथ है 4, ब्रेडथ है लेट्स से 23, इसका नाम मुझे एरिया निकाल के दे दो। क्या वो ये कोड रिपीट कर रहा है बार बार? नहीं। अब क्या कर रहा है, खाली फंक्शन को कॉल कर रहा है, खाली फंक्शन को कॉल कर रहा है, दैट्स इट। गेटिंग दिस पॉइंट? दैट मीन्स जो ये आपका रिपीटेड टास्क है, उस रिपीटेड टास्क को बार बार करने के लिए आपके पास एक चीज है जिसका नाम है फंक्शन। गेटिंग दिस पॉइंट? और यहाँ पे जब भी आप फंक्शन को कुछ पास कर रहे हो, जब भी आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड द कॉलिंग ए फंक्शन, कॉलिंग ए फंक्शन। फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो, आपका नंबर मेरे फोन बुक में सेव्ड है, राइट। इफ आई हैव टू कॉन्टैक्ट यू, आई हैव टू डायल यूर नंबर, यहाँ पे सेम है, आपका ये फंक्शन तो बना हुआ है। अगर आप इस फंक्शन को चाहिए, आपको क्या करना है, जस्ट कॉल द फंक्शन, दैट्स इट। एंड इसको हम बोलेंगे कॉलिंग ऑफ ए फंक्शन। अगर आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तो क्या होगा, मेरे पास ये फंक्शन है, मैं उसको कॉल नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पास सेव है फंक्शन, अगर मैं इसको कॉल करूँ क्या मेरे यहाँ पे कोई आउटपुट आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप फंक्शन को कॉल ही नहीं करोगे। जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक ये लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। गेटिंग दिस पॉइंट? जब ये एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे तो आपको आउटपुट कैसे आ जाएगा प्रिंट का? मीन्स व्हेनेवर यू हैव टू कॉल द फंक्शन, यू हैव टू, व्हेनेवर यू आर डिक्लेयरिंग अ फंक्शन, यू हैव टू कॉल दैट फंक्शन। आई विल से सिंपली हियर फन 8,7, दिस इज माई कॉलिंग द फंक्शन। गेटिंग दिस पॉइंट? अब ये वाली चीज है फंक्शन के अंदर जो आप रख रहे हो, एज आई टोल्ड यू, दिस इज कॉल्ड द पैरामीटर, दिस इज कॉल्ड द पैरामीटर। व्हेन ड्यूरिंग कॉलिंग इफ यू आर पासिंग समथिंग विद इन द पैरेंथेसिस, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। इसको क्या हम बोलते हैं? आर्गुमेंट। इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। फंक्शन का आर्गुमेंट एंड पैरामीटर, दिस टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। गेटिंग? कब आप पैरामीटर पास करो? अगर मैं यहाँ पे कुछ ना रखूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ ना रखूँ और मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो ये आपको एरर देगा। एरर क्या दे रहा है? लेट्स से मैं यहाँ पे एल, आप बोलोगे सर इसकी वजह से आ रहा है, लेट्स से मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ हाई, राइट। अब मैं अगर इसको रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है। क्यों? ये बोल रहा है फंक्शन टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 2 वेरिएबल। वो हो रहा है फंक्शन ना कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, बट आपने ना मुझे 2 दिए हैं, यहाँ पे आपने 2 दिए, क्योंकि एग्रीमेंट है ही नहीं। आप मेरे साथ एग्रीमेंट ही नहीं करोगे। आप बोल रहे सर जब आप कॉल करोगे बस आप कॉल करना, मैं सारा कुछ आपको यहाँ से बता दूंगा, आपको कोई हेलो बोलने की जरूरत नहीं है, राइट। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं यहाँ से उसको आर्ग्यूमेंट कुछ दे रहा हूँ तो ये आर्ग्यूमेंट आपको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कोई एग्रीमेंट है ही नहीं बिटवीन आपके पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स का। गेटिंग दिस पॉइंट? अगर आपने यहाँ पे कुछ रखा है, अगर आपने यहाँ पे कुछ रखा है, अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा हूँ, सो एट दैट टाइम इट विल थ्रो एन एरर, राइट। क्यों बोल रहा है? मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, आपने कोई भी नहीं दिया। दैट मीन्स ये एग्रीमेंट है अभी आपका फंक्शन कॉलिंग के साथ। आप इसको बोल रहे हो जब भी आप मुझे कॉल करो भाई अपना कुछ यहाँ पे पास करना है। लेट्स से मैं यहाँ पे पास क्या कर रहा हूँ, आप कुछ भी पास करूंगा, लेट्स से मैं एक स्ट्रिंग ए पास कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो वैल्यू देना पड़ेगा, राइट। एक वैल्यू दिया, अब तो आपका आउटपुट आ गया हाई। गेटिंग दिस पॉइंट? ये भी समझ आया, आर्ग्यूमेंट और दिस पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। इस पे हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर इट। तीसरी चीज, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ए रिटर्न, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ए रिटर्न। अब रिटर्न क्या होता है? रिटर्न क्या होता है? रिटर्न ऐसे समझ लो आप, मैं आपको बोल रहा हूं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं बोल रहा हूं आपको कि भाई मैं ना आपको एक टॉफी दे रहा हूं ना, या लेट्स से मैं आपको एप्पल दे रहा हूं, मैं आपको एप्पल दे रहा हूं एंड रिटर्न में आपने ना मुझे क्या देना है? रिटर्न में आपने मुझे ना थैंक यू बोलना है। ये मेरा आर्ग्यूमेंट है आपके साथ, एग्रीमेंट में आपके साथ कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मैं आपको एप्पल दे दूंगा, आपको ना रिटर्न में मुझे थैंक यू बोलना है, रिटर्न करना है, प्रिंट नहीं करना है, रिटर्न करना है, राइट। सो यहाँ पे एज आई सेड हियर, मैंने एल रखा है, ये तो एग्रीमेंट हो गया पहले ही कि एप्पल आप दे रहे हो, यहाँ पे तो पैरामीटर होना ही चाहिए। अगर यहाँ पे पैरामीटर नहीं है तो आप आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पे एल है दैट मीन्स आपको पास कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रिटर्न करना हो, रिटर्न मुझे करना है, क्या रिटर्न करना है? थैंक यू। तो मैं यहाँ पे रिटर्न थैंक यू करूंगा, राइट। अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई आउटपुट तो आ ही नहीं रहा है। यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से ये चीज हो गया, आपने यहाँ पे मुझे कॉल किया,
कॉल किया और कॉल करने के साथ साथ मुझे एप्पल भी दे दिया, मैंने एप्पल स्टोर किया किसमें, एल में स्टोर किया। अब मुझे रिटर्न क्या करना था, थैंक यू। तो ये रिटर्न थैंक यू कर रहा है बेचारा, कहां पे कर रहा है, आपको, जहां से आप कॉल कर रहे हो। बट आप यहाँ पे कहीं पे स्टोर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। क्या आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो कि उसने क्या रिटर्न किया, नहीं किया ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप प्रिंट डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने यहाँ से इसको कॉल किया एंड रिटर्न्स टू अ पोजीशन फ्रॉम वेयर यू आर कॉलिंग इट। रिटर्न का काम ये है, ये उस पोजीशन पे आपको रिटर्न चीज करता है जहां से आपने कॉल किया है, राइट। रिटर्न कहां पे लिखा है, लाइन नंबर 6 में। तो ये रिटर्न किस पोजीशन पे करेगा, लाइन नंबर 8 पे। और यहां पे आपको क्या आ जाएगा, थैंक यू। अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आपके पास थैंक यू आ रहा है। अंडरस्टूड। रिटर्न फंक्शन क्या कर रहा है, इट रिटर्न्स टू अ पोजीशन फ्रॉम वेयर यू आर कॉलिंग इट। अगर मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली प्रिंट ना करूं, मैं इसको कहीं पे सेव करना चाहता हूं, मैं x लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू दिस, राइट। एंड अगेन इफ आई विल रन इट, यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने क्या किया, यस चीज हो गई, आपने बोला x इज इक्वल टू फंक्शन को कॉल किया। पहले राइट साइड वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, इवॉल्वेट हो जाएगा, फंक्शन को कॉल किया, आर्गुमेंट पास किया, यहाँ पे पैरामीटर हो ने उसको कैच कर लिया, सेव कर लिया एल में, राइट। यहाँ से आप रिटर्न क्या कर रहे हो, थैंक यू। जो थैंक यू आया वो कहाँ पे रिटर्न होगा, टू द पोजीशन फ्रॉम वेयर यू हैव कॉल्ड इट। इस पोजीशन पे ये आ गया जहां से आपने कॉल किया। जैसे ही यहाँ पे रिटर्न थैंक यू आ गया, सो वो थैंक यू आपने स्टोर किस में किया, एक्स में स्टोर किया। क्या आप एक्स को प्रिंट कर रहे हो, नहीं। अब अगर आपको देखना है भाई एक्स में तो आया क्या, वहां से तो उसने रिटर्न किया, क्या उसने रिटर्न थैंक यू किया, मैं तो उसको चेक करूंगा, राइट। तो आप क्या करोगे, प्रिंट एक्स, राइट। सो अगर आप यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे आपके पास थैंक यू आ चुका है, राइट। सो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीख लिया, 2-3 कॉन्सेप्ट सीख लिए फंक्शन का। फर्स्ट थिंग इज हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन। सो यू हैव टू यूज द डेफ फंक्शन, देन फंक्शन नेम कैन बी एनीथिंग, एनी आइडेंटिफायर हियर, देन यू हैव टू यूज द पैरेंथेसिस हियर, देन ब्रैकेट्स, राइट। ये आपका फंक्शन है और जो भी चीज फंक्शन किया वो इसके अंदर आप लिखोगे। एक तो ये हो गया। दूसरा है, अगर आप चाहते हो ये फंक्शन रन हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा। माने जो भी आपने यहाँ पे नाम रखा है उस नेम से उसको कॉल करना पड़ेगा। ये तो दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज हमने क्या देखी, तीसरी चीज हमने देखी समथिंग अबाउट द पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट और पैरामीटर क्या है, अगर आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ, लेट्स से आपने यहाँ पे बोला डेफ फन एंड यहाँ पे आप बोल रहे हो एल, लेट्स से एम ले लेते थे अभी, यहाँ पे ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, मैं बोल रहा हूँ डेफ फन एंड यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ नेम। मैं बोल रहा हूँ भाई जब भी आप मुझे कॉल करोगे ना तो आपको ना अपना नाम बताना पड़ेगा, आपको ना अपना नाम बताना पड़ेगा जब भी आप कॉल करो। ये क्या हो गया आपका पैरामीटर। ये आप ना एक एग्रीमेंट कर रहे हो। क्या एग्रीमेंट कर रहे हो भाई, जिसको मुझे कॉल करना है उसको अपना नाम बताना ही पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिख देंगे, कुछ भी, राइट। मीन्स जब भी whenever आई कॉलिंग द फंक्शन, whenever ऐसे फन, मेरे को ना अपना नाम बोलना ही पड़ेगा उसको कॉलिंग करने के टाइम। जैसे मेरा नाम अल्फा है, राइट, तो मैं अल्फा बोल ही दूंगा। तो ये कहाँ पे स्टोर करेगा, नेम में। तीसरी चीज, दिस इज पैरामीटर, दिस इज आर्गुमेंट। एंड आर्गुमेंट आप कब देते हो, जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, राइट। एंड पैरामीटर कहाँ पे होता है, जब आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो। अगर यहाँ पे पैरामीटर है, यू हैव टू पास हियर आर्गुमेंट। अगर यहाँ पे पैरामीटर नहीं है तो आप यहाँ से आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते हो, राइट। तीसरी चीज हमने ये सीखी। चौथी चीज, फोर्थ थिंग, समथिंग अबाउट द रिटर्न फंक्शन। रिटर्न क्या होता है, इट रिटर्न्स टू अ पोजीशन, जहां से आप उसको कॉल कर रहे हो। ये कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, कहां पे रिटर्न कर रहा है, जहां से आपने कॉल किया। लेट्स से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ डेफ नेम, ये मेरा डेफ आई विल से हियर फन, लेट्स से फंक्शन नेम, एंड यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको अपना नाम बताना पड़ेगा, तो आप अपना नाम बताओगे। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं रिटर्न, या लेट्स से आई एम सेइंग हाय एंड आई विल गिव हियर नेम, जो भी आपने नाम पास किया। या जब भी मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगी मैं बोलूँगी यहाँ पे फन, लेट्स से आई एम सेइंग अल्फा, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अल्फा गया यहाँ से गया, कहाँ पे स्टोर हो गया, नेम में स्टोर हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे एक आपका मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा नेम का, जिसमें क्या स्टोर हुआ, अल्फा,
राइट। एंड यहाँ से आपने फंक्शन को कॉल किया, उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल हुआ। अब क्या यहाँ से हो रहा है, रिटर्न। रिटर्न क्या हो रहा है, हाई नेम। हाई नेम क्या हो जाएगा, मीन्स कि यहाँ से रिटर्न होता है मेरा हाई अल्फा। हाई अल्फा रिटर्न हो रहा है, कहाँ पे रिटर्न हो जाए, टू द पोजीशन जहां से आपने कॉल किया। मैंने कहां से कॉल किया, यहाँ पे, तो इस पोजीशन पे ये रिटर्न कर देगा हाई अल्फा, राइट। अगर आप उसी चीज को प्रिंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रिंट यूज कर सकते हो। अगर स्टोर करना कहीं पे तो इक्वल टू करके ये कोई आइडेंटिफाइड नेम देना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। सो लास्ट चीज देखते हैं, ये वाला चीज, एंड देन आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। लेट्स से आई एम सेइंग हियर नेम। नेम एक एग्रीमेंट बना दिया भाई, जिसको भी कॉल करना है, एंड आई विल से थैंक यू नेम, and I will say here name, and let's say here fun I am saying apple, तो ये मुझे क्या बोलना चाहिए, thank you apple, right? So if I am writing here it is giving me the thank you apple here, getting this point, right? ये भी आप कर सकते हो। या कुछ और बोलना है, मीन्स कि अगर कोई और मुझे कॉल कर रहा है, let's say here कोई और मुझे कॉल कर रहा है, I will directly print here, I will not store it anywhere। let's say मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ fun again, कोई क्लास का स्टूडेंट है, let's say क्लास का स्टूडेंट का नाम किसी का है शुभ, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या आना चाहिए, थैंक यू शुभ, एंड द सेम यू विल गेट हियर थैंक यू शुभ, राइट। सो अगर कुछ और लिखना होगा, फिर से लिखना होगा, तो फिर से मैं यहाँ पे सेम थिंग करूँगा, कंट्रोल वी, एंड आई विल से हियर लेट्स से दीपक इज कॉलिंग मी नाउ, राइट। सो अगेन इफ आई रन इट हियर, नाउ यू आर गेटिंग थैंक यू दीपक, गेटिंग दिस पॉइंट। सो अब मैं ये वाला कोड ना बार बार नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जो भी मैंने यहाँ पे बना लिया। I hope you understood these concepts, and function is a very important topic. I will come up with as many videos as possible so that you will not face any kind of a difficulty with the functions. As of now, just understand the argument, just understand the parameter, understand the return function, and calling the function, right? These are the three things that I have discussed in this video. I hope you will understand it.